Hare Krishna. Chapter 5 Bhagavad Gita as it is. First verse. Arjun Uvacha. Sannyasam karmanam Krishna punar yogam cha shamsasi. Yachreya etayorekam tanme bruhi sunishchitam. Translation. Arjun said, O Krishna, first of all you ask me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? Now there is work with devotion, you can consider it as karma yoga, and another is to renounce work completely, that is jnana marga, jnana yoga also, wherein you renounce the karma, you don't actively do any material activities. So among them which is better? That's what Arjuna is asking. Now he's confused. Like in the second chapter, contents of the Gita summarized, wherein the knowledge of spirit soul, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताया था, और उसके बाद कर्मयोग का चैप्टर था, फिर उसके बाद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. तो भगवान क्या है ना, जब कर्मयोग बताते तो कर्मयोग की प्राधान्यता बताते हैं, फिर कभी कभी फिर ज्ञान मार्ग का तो ज्ञान योग का प्राधान्यता बताते हैं. तद्विधि प्रणिपातेन परिश्य प्रश्नेन सेवया, one must approach a spiritual master and gain spiritual knowledge from them by serving him, by inquiring about the absolute truth. तो ये सब कंफ्यूज करना क्या है, मतलब exactly which is better for me, that's what Arjun is asking. Purport by Srila Prabhupada in this 5th chapter of the Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because, being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the 2nd chapter, preliminary knowledge of the soul and its entanglement in the material body were explained. How to get out of this material engagement by buddhi yoga or devotional service was also explained therein. In the 3rd chapter, it was explained. So in the 2nd chapter, it's a mixed. थोड़ा ज्ञान भी बताया, थोड़ा कर्म भी बताया. And then 3rd chapter, it was explained that a person who is situated on the platform knowledge no longer has any duties to perform. And in the 4th chapter, the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. हर चीज ज्ञाने परिसमाप्यते, ये श्लोक आता है उसमें. तो सर्वकर्माखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, सब कुछ ज्ञान में ही लीन होता है हर कुछ. फाइनली द स्पिरिचुअल knowledge is the aim. One who is performing karma yoga also, the aim is that he should gain some spiritual knowledge. So however, at the end of 4th chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight again. So being situated in perfect knowledge. Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. तो पहले एक जगह बता दे कि कर्म करना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. फिर दूसरे अध्याय में फिर से बताते हैं कि नहीं, ज्ञान उत्तम है, कर्म से के ऊपर है, कर्म का गंतव्य ज्ञान है. तो करना क्या है, ज्ञान मार्ग को अपनाना है या फिर कर्म के मार्ग को अपनाना है? क्योंकि फिर ज्ञान का परिपक्वता बताने के बावजूद भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो अर्जुन को. देन अर्जुन इज परप्लेक्स्ड हियर. सो अर्जुन अंडरस्टैंड्स दैट रिनंसिएशन इन नॉलेज इन्वॉल्व्स सेसेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एज सेंस एक्टिविटीज. यानी ज्ञान में किसको अगर परिपक्वता प्राप्त करनी है तो उसको सभी इंद्रिय तृप्ति छोड़नी पड़ती है. सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति जो है, अच्छा भोजन करना, अच्छा वस्त्र पहनना, पैसे कमाना, ये सब कुछ जो इंद्रिय तृप्ति होती हैं, ये सबको त्याग करके व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर चलना होता है. बट इफ वन परफॉर्म्स वर्क इन डिवोशनल सर्विस, देन हाउ इज वर्क स्टॉप्ड? पर अगर कर्म को भगवान की सेवा में जोड़ने से कर्म कैसे रुक जाएगा फिर? इन अदर वर्ड्स, ही थिंक्स दैट संन्यास or renunciation in knowledge should be altogether free from all kinds of activity because work and renunciation appear to him to be incompatible. एक तो तरफ कर्म है, दूसरी तरफ ज्ञान है. ज्ञान तो क्या मांग रहा है कि सब कर्म को त्याग करना, ये ज्ञान मांगता है.
तो कर्म डिवोशनल सर्विस अगर करेंगे तो कैसे संभव है कि व्यक्ति कर्म को त्याग करेगा? या फिर कर्म का योग करना या फिर ज्ञान योग करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों भी विपरीत चीज ऐसे अर्जुन समझ रहे हैं कि ज्ञान में व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए और कर्म में वो गृहस्थ बन के भी कर्म कर सकता है। तो फिर जब ज्ञान का स्तर पे आना है तो कर्म को त्यागना पड़ेगा उसे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये समझ अर्जुन ले रहे हैं। ही अपीयर्स नॉट टू हैव अंडरस्टूड दैट वर्क इन फुल नॉलेज इज नॉन रिएक्टिव एंड इज देयरफॉर द सेम एज इन एक्शन। यानी भगवान के लिए जब कर्म करते हैं वो संन्यास के भांति ही होता है। संन्यास में जैसे व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कर्म अगर नहीं करता तो कर्म का फल उसको नहीं लगते, उसी प्रकार भगवान के लिए जो कर्म किए हैं उसके कर्म फल उसको नहीं लगते हैं, यानी पुण्य या फिर पाप कर्म। मान लीजिए भगवान के लिए कोई प्रसाद बनाता है, भोजन बनाता है, तो उसमें अगर कोई जीव जंतु या कोई जर्म्स का नाश होता है तो उसमें भगवान को भोग लगाने की वजह से उसका पाप उसको नहीं लगता है। दिस इज डिवोशनल सर्विस। जब झाड़ू लगाते हैं मंदिर का तभी कई सारी चींटियाँ मर जाती हैं, उसका पाप उस व्यक्ति को नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए करता है। जब अपने घर के लिए करता है, जब घर में झाड़ू मारता है इस भाव से कि घर मेरा है, मम भावना होती है, तो उसको पाप लगता है। इसलिए गृहस्थों को पंचशून यज्ञ करने के लिए कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार पंचशून यज्ञ होता है जिसमें 5 प्रकार की जीव हत्या के लिए यज्ञ किया जाता है, जो कि आजकल नहीं करता है। आप भगवान कृष्ण की जो दिनचर्या है, डेली एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये कृष्ण बुक में चैप्टर आता है, उसमें आपको पता चलेगा। उसके आगे के अध्याय में जिसमें नारद मुनि हर पैलेस में जाके कृष्ण क्या कर रहे हैं देखते हैं, इसमें एक लीला आता है कि वहाँ पे भगवान कृष्ण एक जगह पे पंचशून यज्ञ कर रहे हैं। So he appears not to have understood, here Arjun appears not to have understood that work in full knowledge is non-reactive. कोई रिएक्शन नहीं लगने वाला है अगर कर्म करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को रखते हुए और भगवान के लिए, and is therefore the same as in action. So he inquires therefore whether he should cease work altogether or work with full knowledge. तो करना क्या है? डिवोशनल सर्विस करना है या फिर कर्म को त्याग करना है? तो ये कन्फ्यूजन में अर्जुन रहता है। So Acharya commentaries, what other Acharya says in this of the first verse. Shri Baldev Vidyabhushan says that Hari speaks of the superiority of karma over jnana in this 5th chapter. ज्ञान से भी यानी कर्म त्याग से भी बढ़कर भी भगवान के लिए कर्म करना ये है, तो कर्म का सुपेरियरिटी बता रहे अभी इस चैप्टर में। बिकॉज ऑफ सच रीजन्स ही ऑल्सो स्पीक्स अबाउट गिविंग अप परफॉर्मेंस ऑफ कर्म योगा बाय द पर्सन हु इज प्योर। अर्थात अगर कोई व्यक्ति का स्तर बहुत ही ऊंचा है, अगर वो भौतिक स्थितियों से आसक्त नहीं है, तो वो ज्ञान अगर वो शुद्ध स्तर पर है तो वो ज्ञान का स्तर भी अपना सकता है। ऐसे नहीं कि उसको स्टक ही रहना है। बट फॉर अर्जुन बेटर इज डिवोशनल सर्विस, कर्म योगा। सो इन द 2nd chapter, हैविंग एक्सप्लेन द रियलाइजेशन ऑफ आत्मा एज कॉज ऑफ लिबरेशन, सो 2nd chapter में आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान बताया और इसमें बताया कि यस्त्वा आत्मरति रेवसा, जिसको आत्मरति है उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं रहता है। जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, ऑलरेडी ज्ञान स्तर पर एकदम परिपक्वता प्राप्त की है, तो उसके लिए कर्म करने के लिए बाध्य कुछ भी नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इट इज सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म बोथ रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन एंड कर्म योग एट वंस, बिकॉज देयर इज एसेंशियल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द टू, एज देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन इन रिमेनिंग स्टेशनरी एंड मूविंग। Therefore, the man of knowledge should either renounce karma or perform karma yoga. दोनों में से एक ही हो सकता है। As I do understand your intention, I am asking. ये अर्जुन का भाव है। So अर्जुन पूछ रहे हैं, among this, which two is better? Keshava Kashmir is saying that in this situation, it is difficult for an aspirant, for a person or for a sadhaka, to determine if karma yoga or jnana yoga is more appropriate for him. So Lord Krishna has stated that one who performs action as a matter of duty, unattached, without results, without desire for rewards, so he will not get any sinful reactions. Then again he had instructed that yajna or offerings of worship with spiritual intelligence is superior to yajna performed with material ingredients. यानी ज्ञान यज्ञ जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है। ज्ञाने परिसमाप्यते, सभी यज्ञ जो हैं ज्ञान पर समाप्त होते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में।
तो सबसे ऊंचा, तो कर्म करना या फिर ज्ञान पकड़ना है, तो इसमें कंफ्यूजन आता है. सो बिकॉज द पाथ्स अपीयर कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, लॉर्ड कृष्णा इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू रिजॉल्व दिस इशू. तो अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे किस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. तो क्या करना है, कर्म योग करना है या फिर ज्ञान योग करना है, विच इज बेटर. नेक्स्ट वर्स, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. So the personality of God had replied here, sannyasa, that is called renunciation of work, कर्म को त्याग करना, and work in devotion, sannyasa karma yogascha, karma yoga is what? Work in devotion, are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. ये बेटर है कर्म योग. क्यों बेटर है, वी विल अंडरस्टैंड बाय द नेक्स्ट वर्सेस. Perpend by Srila Prabhupada, fruitive activities seeking sense gratification are cause for material bondage. फ्रूटिव एक्टिविटीज़ कई बार हमने सुना है, कर्म करना फल की इच्छा रखते हुए, इसे कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज़, जो कि यूजुअली लोग करते हैं. आर कॉज फॉर मटेरियल बॉन्डेज, बंधन का कारण यही है. एज लॉन्ग एज वन इज एंगेज इन एक्टिविटीज एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीली कंफर्ट, वन इज श्योर टू ट्रांसमाइग्रेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, thereby continuing material bondage perpetually. Srimad Bhagavatam confirms this as follows. Nunam pramattah kurute vikarma yadindriya priti apranoti na sadhu manne yadatmanoyam asannapi kleshada sadeha parabhavastavatamodajata yavanna jigyasata atmatatvam yavat kriyastavadidam manovai karmatmakam yena sharira bandha evam manah karma vasham prayukte अविद्यात्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेव न मुच्यते देह योगेन तावत्. So here is a translation of these verses. People are mad after sense gratification. Nunam pramattah kurute vikarma. And they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. अगर हम सिर्फ कर्म इसलिए करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, जो कि लोग करते हैं, इसे पुनर्जन्म उसका होगा, चाहे वो पशु में, पक्षी में या कि और योनि में. तो इसके वजह से हम इतने जन्म से फंसते हुए आ रहे हैं. सो ऑल्दो दिस बॉडी इज टेम्पररी, इट इज ऑलवेज गिविंग वन ट्रबल इन मेनी वेज. देयरफॉर टू act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive results for sense gratification. And as long as one is engrossed in consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Only then one can have the opportunity to get out of the bondage of material existence. So usually people are after only sense gratification, खाना पीना सोना, अपना संरक्षण करना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, विवाह करना, पुत्र उत्पन्न करना. तो ये सब जो है ये कॉमन है, और इससे व्यक्ति जो है बंधन में फंसता रहता है. इससे व्यक्ति अंधकार में, ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार में फंसता है. He cannot see beyond this then, if he is only after family and so-called sense gratification. Therefore, jnana or knowledge, one is not this material body, but spirit soul, is not sufficient for liberation. One has to act in the status of spirit soul. Otherwise, there is no escape from material bondage. हमको knowledge है, भगवद गीता पढ़ लिया, पर वही चीज़ कर रहे हैं. भगवद गीता का पढ़ने के बावजूद भी वही फैमिली में ही रुचि है, खाने पीने में ही रुचि है, कपड़े पहनने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में ही रुचि है, पैसे कमाने में, पैसे को बढ़ाने में. तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति जो है पढ़ने के बावजूद न पढ़ने के जैसा है. पुस्तके च विद्या परिहस्ते धनम च यत्, चाणक्य पंडित कहते हैं दूसरे के हाथ में धन कुछ काम का नहीं, और पुस्तक में ज्ञान कुछ काम का नहीं. तो थियरी नॉलेज सिर्फ ज़रूर इम्पॉर्टेंट नहीं है, रियलाइजेशन शुड बी देयर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज शुड बी देयर. वन हैज़ टू एक्ट इन द स्टेटस ऑफ स्पिरिचुअल. हम आत्मा है, इस स्तर पे हमको जीना चाहिए. देयरफॉर मिनिमम ग्रेटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, whatever is required, that is accepted. Rest others one should give, rest other one should give up. So otherwise there is no scope from material bondage.
otherwise escape from material bondage. Action in Krishna consciousness is not, however, action on the fruitive platform. Activities performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of the conditioned soul. As long as the heart is not purified, one has to work on the fruitive platform. But action in Krishna consciousness automatically helps one escape the result of fruitive action so that one need not descend to the material platform. Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation, which always entails a risk of falling. Renunciation without Krishna consciousness is incomplete, as it is confirmed by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. So here, Krishna consciousness, action performed in Krishna consciousness, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना, ग्रेजुअली ही विल बी डिटैच फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑटोमेटिकली. ये हम देखते हैं कई बार, जो भगवान कृष्ण भावनामृत में जब जुड़ते हैं, उसके पहले वो चाय तक नहीं छोड़ पा रहे थे. तो जैसे कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो वो 4 नियम का पालन करते हैं. जिस चीज़ के लिए पूरे संसार पागल है, उस चीज़ों को छोड़ देते हैं. मांसाहार हो, अवैध संग हो, या फिर इंटॉक्सिकेशन हो, नशा करना हो, या फिर गैम्बलिंग हो. So all these are controlled, and sometimes very astonishing that कितना काउंसलिंग करने के बाद भी व्यक्ति शराब नहीं छोड़ता है, सिगरेट नहीं छोड़ता है, पर भगवान की भक्ति में जैसे ही प्रारंभ हो जाता है वो बहुत चीज़ें छोड़ देता है. पीपल आर leaving their nasty habits and they are getting purified gradually just by chanting the holy name of the Lord and working for Krishna. So devotional service is all purifying. Therefore Krishna consciousness is superior to renunciation. अगर कोई विरक्त है, संसार में वो विवाह नहीं कर रहा है, तपस्या करता है, पर भगवान कृष्ण के प्रति रति नहीं है उसकी, या भगवान के कृष्ण के प्रति उसका ज्ञान नहीं है उसके पास, तो उसका जो विरक्ति है, उसका जो संन्यास लेना है अधूरा है. द पर्पज ऑफ टेकिंग संन्यास इज फुल्ली सरेंडर टू कृष्णा. वन शुड बी एबल टू प्लीज लॉर्ड बाय टेकिंग संन्यास. एक स्टोरी है जिसमें एक व्यक्ति है जो संन्यास लेता है. महाभारत में दिस स्टोरी कम्स, एंड उसका नाम है जरत्कारु. एक ऋषि था, उसका नाम है जरत्कारु, और वो वन घूमता रहता है, तपस्या करता है और तपस्या करता है. उसने विवाह नहीं किया है. एक दिन वो देखता है कि एक व्यक्ति बहुत भयावह स्थिति में है, उसको उल्टा लटकाया हुआ है और नीचे बहुत बड़ा खड्डा भी है. तो देखने के बाद जरत्कारु पूछते हैं, आप कौन हैं, आपको ऐसा क्यों लटकाया गया है? तो वो कहते हैं, मैं पितृ हूँ. पितृ, एंसिस्टर जिसे कहते हैं, मैं पितृ हूँ, पितृलोक का. तो आपकी ये हालत किसने की, पर आप ऐसे क्यों लटके हुए? कि मेरा हालत इसके लिए ऐसा है, मैं इसलिए तड़प रहा हूँ, मुझे उल्टा लटकाया गया है, क्योंकि मेरा कोई वंश ही नहीं बचा है जो तर्पण कर सके मेरे लिए. जैसे पितृ श्राद्ध होता है या फिर तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए एंसेस्टर्स को तर्पण किया जाता है. तो ये सब हमारी संस्कृति में है. तो ये कहता है कि ये करने के लिए कोई भी नहीं है, और इसमें पितृ तर्पण नहीं करने की वजह से ये मेरी हालत हो रही है. तो बोल रहा है, ऐसा कौन आपके वंश में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कहता है कि मेरे वंश में जो अभी है वो एक ही व्यक्ति बचा है, और वो भी संसार में प्रवेश नहीं कर रहा है, विवाह नहीं कर रहा है, और इसके वजह से उसको पुत्र नहीं है, और पुत्र प्राप्ति नहीं होने की वजह से हमको तर्पण नहीं मिलेगा. तो इसकी वजह से मैं दुख में हूँ. तो जरत्कारु पूछते हैं उस व्यक्ति को, पितृ को, कि आप कौन है? बोले पितृ है. पितृ तो ऐसा हालत क्यों हुई? तो इसके वजह से हुई. तो कौन है, उसका नाम क्या है, कौन है उसका वंश? तो बोलते हैं उसका नाम है जरत्कारु. तो पितृ क्या कहता है? उसका नाम है जरत्कारु, जो कि स्वयं उसके सामने ही है, जो खड़े हैं उनका नाम भी जरत्कारु है. तो जरत्कारु कहते हैं, अरे जरत्कारु तो मैं ही हूँ, तो मैं क्या, आप ही मेरे पितृ हैं?
तो मैं क्या आपकी सेवा करूँ? तो बोलते आपको विवाह करना चाहिए। तो बोलते मैं ऐसा विवाह नहीं करूँगा जब तक कोई मुझे भिक्षा में नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो एक भिक्षु हूँ, मेरा तो कुछ संसार नहीं, मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, तो मुझे कौन लड़की देगा? तो इसलिए भिक्षा में अगर कोई मुझे दान देगा तो ही मैं स्वीकारूंगा। तो ऐसा ही होता है वसुकी, जब वह पुकारते हैं कि कोई भिक्षा देना चाहते हैं, तो वसुकी अपने बहन को उनको सौंपते हैं, जरत्कारु को, और फिर उनका विवाह होता है। फिर उस पितरों का भी उद्धार हो जाता है और इनका भी। तो ये महाभारत में ये कथा आती है, इसमें ये इसके सीखने का क्या है कि देखिए, जरत्कारु यहाँ पे भगवान के विशुद्ध भक्त नहीं है। अगर विशुद्ध भक्त होते तो ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि विशुद्ध भक्त होने की वजह से पितरों का उद्धार होता है। भगवान कृष्ण का भक्ति करने से पितरस्थितस्थ स्वर्गस्थ धन्य, पितरों का भी उद्धार होता है। पर क्योंकि वह भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर रहे थे, वह ऐसी तपस्या कर रहे थे, हो सकता है कि ब्रह्म में लीन में होने, हो सकता है या फिर योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या फिर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए वह तपस्या कर रहे थे। तो ये तपस्या वह बिना विवाह करते हुए संसार में प्रवेश नहीं किए, संन्यास लिए हुए थे। तो ये इसके वजह से पितरों को दुख होने लगा। यानी जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, उसको संन्यास लेने का अधिकार एक्चुअली नहीं है। अगर वो संन्यास लेता है तो पितरों के प्रति उसका अपराध हो जाता है, तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही पड़ेगा, जिसमें उसको पुत्र प्राप्ति के बाद वो तर्पण कर सकता है। तो ये इसमें आते, इसका मतलब रिनंसिएशन विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इनकम्प्लीट। सो एज इज कन्फर्म्ड बाय रूप गोस्वामी इन द भक्तिरसामृत सिंधु, प्रपंचकटाय बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। सो दिस इज, वी आर रीडिंग द purport now. So when persons eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. Renunciation is complete when it is in the knowledge that everything is existence belongs to the Lord, and that no one should claim property over anything. One should understand that factually nothing belongs to anyone. जैसे मान लीजिए किसी का बटवा गिरता है, किसी का पर्स गिरता है, तो एक व्यक्ति होता है जो चोरी करके लेके जाता है, या फिर एक व्यक्ति है जो पटवा गिरा देखा तो उसने क्या किया, वहीं पर रहने दिया। पर तीसरा व्यक्ति क्या है, बटवा देखा और उसने उसका एड्रेस ढूंढा और उसको दे दिया। तो बेटर कौन सा है? तीसरा व्यक्ति है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिकवादी में कई श्रेणियां होती हैं, उसमें से कई लोग सब विरक्त होते हैं, संसार के भोग में रस नहीं लेते हैं, ये समझते हैं कि ये संसार माया है और ब्रह्म ही सत्य है। पर उत्तम आध्यात्मिकवादी वो हैं जो ये समझता है हर कुछ भगवान के संबंध में, सब कुछ भगवान का है। तो इसलिए वो किसी को कोई चीज़ को त्यागता नहीं है, वो हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाता है। सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट फैक्चुअली नथिंग बिलोंग्स टू एनीवन। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रिनंसिएशन देन? त्याग क्या करोगे? तुम्हारा कुछ होगा तो त्याग करोगे ना। सो वन हु नोज दैट एवरीथिंग इज कृष्णास प्रॉपर्टी इज ऑलवेज सिचुएटेड इन रिनंसिएशन. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. तो मायावादी सन्यासियों से बढ़कर, मायावादी यानी जो ब्रह्म निराकार ज्योति में लीन होने चाहते हैं या फिर भगवान कृष्ण के रूप को नहीं मानते, इन्हें मायावादी कहते हैं। सब कुछ माया है, पूरा जगत माया है, सिर्फ ब्रह्म सत्य है, ये मायावादी लोग हैं। ये मायावादी सन्यासी बनने से बेहतर अच्छा है जो भगवान कृष्ण का भक्त है पर गृहस्थ है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। दैट इज मच मच बेटर। और सन्यास लेना पर भगवान कृष्ण भावनामृत में न होना, यह अधूरा है। सो हियर लॉर्ड कृष्णा सेज द डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन नॉलेज। So here Baldev Vidyabhushan is saying that one who has renounced action because of steadiness in jnana, if he develops a fault in his consciousness, he must again perform karma yoga to correct the fault. यानी अगर कोई ज्ञान मार्ग को अपनाता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर नहीं संभव है, प्रॉब्लम आते हैं उसमें, तो उसने फिर से कर्म योग को पकड़ना चाहिए। This is the injunction of scripture for remedying the problem.
So karma yoga is better because it is easier to perform also, because it is safer and because it contains ज्ञान within it. तो कर्म योग के अंदर ही ज्ञान भी है, तो ये सेफ भी है. और संन्यास लेने से व्यक्ति क्या है, फिर से संसार में प्रवेश करके पतन भी हो सकता है उसका, या विकृत स्थिति आ सकती है. अगर मनमाने ढंग से कोई व्यक्ति संसार छोड़ता है और फिर से वह गलत तरह से भोग में, यानी संन्यास लेने के बाद वो घर घर जाके भिक्षा मांग रहा है पेट भरने के लिए पैसे, उससे बेटर है वो गृहस्थ जो मेहनत करके पैसा कमाता है. यानी भिक्षा इसके लिए नहीं मांगी जाती कि पेट भरने के लिए या फिर सेविंग या बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए. कई सर के तथाकथित ऐसे आध्यात्मिकवादी लोग हैं जो भिक्षा मांग के बैंक बैलेंस अपना बढ़ा रहे हैं. वृंदावन बरसाना जैसे एरिया में भी कई लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं. व्हाट इज़ द पर्पस? तो ये समझना चाहिए कि इससे बेटर ये है कर्मयोग करना. श्रीधर स्वामी सेज दैट द आंसर टू द ईयर लॉर्ड कृष्णा डज नॉट प्रिस्क्राइब कर्म योगा टू वन हु इज सिचुएटेड इन आत्मतत्व. एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि ज्ञान संन्यास लेना गलत है, ऐसा नहीं है. यहाँ पे व्यक्ति की स्थिति को देख के एडवाइस दिया जाता है. एक मेडिसिन सब में नहीं चलती है. अभी अर्जुन ठहरा क्षत्रिय, और क्षत्रियों का बोलेंगे डायरेक्ट ब्राह्मण जैसा बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ये इम्पॉसिबल जैसा चीज़ है. तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए डिवोशन सर्विस इज मच बेटर देन ज्ञान. तो डायरेक्ट विम्सिकली संन्यास लेके युद्ध को छोड़ देना ये तुम्हारे लिए ठीक है ही नहीं, क्योंकि कर्तव्य से तो मुखर रहे हो. सो वन दैट्स व्हाई अगर कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हैं और अच्छे संप्रदाय में हैं, 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में है, और दीक्षा प्राप्त की है, तो वह संन्यास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं उससे. बट फॉर दोज हु कंसिडर द फिजिकल बॉडी एंड द आत्मा टू बी ऑल द सेम, अगर हम वैसा नहीं है, बॉडी प्लेटफॉर्म में अभी है, तो हमारे लिए कर्मयोग ही बेटर है. ये सिद्धांत दिखा रहे हैं यहाँ पे. When a person has achieved a state of purity and spiritual advancement by the practice of karma yoga, at that time one is qualified to begin performing renunciation of activities as the next step on the way to attaining atma tattva or soul realization. तो पहले कर्म भगवान के लिए करना सीखना है, फल भगवान को अर्पित करना सीखना है, उसके बाद पूरा कर्म संन्यास लेना. ओके, अगर उसमें ही अगर कर्म का फल भगवान को आप नहीं दे सकते तो कर्म क्या त्याग करेंगे भगवान के लिए. सो बिटवीन द टू कर्म योगा इज सुपीरियर टू द रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, क्योंकि सेफ है. एटलीस्ट एट दिस स्टेज वन शुड नॉट डायरेक्टली जंप ऑन संन्यास और ज्ञान. मध्वाचार्य says that here a person who is devoted to Supreme Lord Krishna is superior to all beings. If such person has a qualification, then he is an already a renunciate. A pure devotee is already a renunciate. Narad Puran it is stated, when such accomplishment is acquired, one achieves the state of renunciation from the rewards of actions directly, even before realizing the Brahman or realizing the Brahman. This is not to imply that Krishna is not pleased by a person's renunciation, because the absence of desire and attachment to the rewards of action is certainly an advanced stage, but rather this is emphasized that renunciation of the rewards from one's action by itself is not enough to realize the supreme without a sense of devotion along with it. Both are equally authorized, and when karma yoga includes the renunciation of the rewards from one's action, it becomes superior, for without sense of detachment and renunciation activities are influenced by the dualities of life such as success and failure and become a source of misery. तो कर्मयोग बिना अनासक्त यानी कर्मयोग कर रहे हैं पर अगर आसक्ति रहेगी, कर्म कर रहे पर अगर फल पर आसक्ति रहेगी तो कुछ काम का नहीं. इसलिए कर्म करते हुए फल अगर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, आसक्त नहीं है, तो सुपीरियर है वो कर्म. Otherwise, when you are working hard and whatever money is coming, you are just using for your family and yourself, then definitely this is not called karma yoga. Okay, one must devote his hard-earned money for Lord's purpose.
then one will be qualified to become a karma yogi, and then gradually one will get a realization that Krishna is my master and I am his servant. And then when he wants, then he can completely devote himself full time in Krishna consciousness. ये बहुत ही ग्रेजुअल और सेफ वे है ऐसा करना. Sri Ramanujacharya says that between the two, karma yoga is easier to perform and can in fact be performed with renunciation, receiving benefits from both. Okay. तो रिनंसिएशन, अगर कर्मयोग करते हैं अनासक्त होकर, निष्काम कर्मयोग जिसे कहते हैं, कामना रहित, भोग की कोई कामना न रखते हुए, तो उसको ज्ञान का फल भी मिलेगा. ओके. ही विल कंसिडर एज सन्यासी च योगी जी, ही इज द रियल सन्यासी. जैसे कृष्ण एक श्लोक में बोले अनाश्रित कर्मफल, जो कर्मफल पे आश्रित नहीं है वही सन्यासी है. थर्ड वर्ड्स, नेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते. So one who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. यानी अर्जुन को यहाँ पे क्या बता रहना चाहते हैं कृष्ण, तुम इसलिए युद्ध ना करना कि तुम्हें पसंद है, तुम इसलिए युद्ध नहीं करना, मना ना करना युद्ध करने के लिए क्योंकि तुमको ना पसंद है, क्योंकि तुमको अपने लोगों को नहीं मारना है. नहीं, दोनों भी छोड़ना है. लाइक और डिसलाइक, दीज आर डुअलिटीज. यू हैव टू वर्क बिकॉज आई एम सेइंग, कृष्ण वांट्स टू से स्ट्रेस दिस. तो कर्तव्य समझ के करना, भले ही पसंद है नहीं. जैसे किसी को मारना पसंद नहीं है, पर युद्ध भूमि में किसी को सामने वालों को मारना पड़ता, नहीं तो फिर खुद मर जाएगी. तो कर्तव्य समझ के चीज़ों को करना. सच अ पर्सन फ्रॉम नॉलेज, सो वन should neither hate, neither one should favor fruits of his activities. Okay, that person actually renounced. तो द्वंद्व से जो बाहर है, दोनों द्वंद्व से, अच्छा बुरा सही गलत, जो कृष्ण के लिए करना, दैट इज एक्चुअल राइट, वही व्यक्ति मुक्ति स्तर पर पहुंच सकता है. एक वो है जो सब कर्म छोड़कर मुक्ति स्तर पर जाना चाहता है, दूसरा वो है जो कृष्ण के लिए कर्म करके मुक्ति में जा सकता है. So this is much better. So purport by Srila Prabhupada, one who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer, because he feels neither hatred nor desires for the results of his actions. Such a renouncer dedicated to the transcendental loving service of the Lord is fully qualified in knowledge, because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. एक वो व्यक्ति है जो शास्त्र अध्ययन करके इतना बखान करता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बखान करता रहता है, बोलता रहता है, पर कुछ करता नहीं है प्रैक्टिकली. और एक तरफ वो है जो भगवान कृष्ण की मेहनत करता है, जॉब पे जाता है और सैलरी आने के बाद वो जो पैसा है अपने गुरु को देता है या फिर मंदिर बना, भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए देता है. ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये व्यक्ति भले ही भौतिक कर्म करता है पर फल भगवान को अर्पित इसलिए कर रहा था कि वो समझता है भली भांति कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ एंड कृष्ण इज माई मास्टर, एंड यही जीवन का लक्ष्य है. He knows fully well that Krishna is the whole and that he is the part and parcel of Krishna. Such knowledge is perfect because it is qualitatively and quantitatively correct. Okay, क्वालिटी भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है, कर्म भी ज़्यादा, सेवा भी ज़्यादा करते हैं, और जो भाव भी है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये भी बहुत उत्तम है. So the concept of oneness with Krishna is incorrect because the part cannot be equal to the whole. Knowledge that one is one in quality yet different in quantity is correct transcendental knowledge, leading one to become full in himself, having nothing to aspire to or lament over. There is no duality in his mind because whatever he does for Krishna. Being thus freed from the platform of dualities, he is liberated even in this material world. तो व्यक्ति संसार में रह के भी जीवन मुक्त हो सकता है. कभी कैसे? मुक्तिर हितवा स्वरूपस्तेन, कि अपने स्वरूप को जानकर कि वो भगवान कृष्ण का सेवक है, ये जानकर और उसके अनुरूप कार्य जब करता है तभी वो अपने मुक्त आता है. यानी 4 नियमों का पालन करता है, भगवान कृष्ण का हरिनाम लेता है,
भागवत सुनता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है, प्रचार करता है, तो ये व्यक्ति मुक्ति कहलाता है। ओके, क्योंकि वह द्वंद्व से ऊपर है। ऑल्दो समटाइम्स कृष्ण सर्विस इज डिफिकल्ट टू डू बट स्टिल ही इज डूइंग। सिग्नल पे रह के कभी कभी ग्रंथों का वितरण करते हैं, भले ही पसंद नहीं आता फिर भी करता है। सो इन ड्युअलिटी से अच्छा बुरा, ओके, डिस्ट्रेस प्रॉब्लम, उससे व्यक्ति उभरता है। सो बीइंग दस फ्रीड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म डुअलिटीज ही इज लिबरेटेड इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इस भौतिक संसार में अगर रहता भी है, कर्म भी कर रहा है, पर फिर भी उसको कर्म का फल बांध नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मण्य अधाय कर्माणि, वो भगवान के लिए कर्म करता है इसके लिए। और एक तरफ वो जो लोग हैं जो समझते हैं कि भगवान से एक हो जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि स्वामी स्वामी होता है, सेवक सेवक होता है। सेवक कभी स्वामी में मर्ज नहीं हो सकता। सो ये मायावाद का भी खंडन यहाँ पे होता है इस सत्य से। तो इसलिए वही व्यक्ति एक्चुअली सन्यासी है जो द्वेष या फिर द्वेष नहीं करता कोई कर्म फल पर, या फिर किसी कर्म फल को ज़्यादा आवश्यकता से अधिक पसंद नहीं करता है, वो दोनों द्वंद्व से बाहर है। ऐसा व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त है। सो आचार्यस for this particular verse comments, Baldev Vidyabhushan says that karma yoga with pure heart is called nitya sannyasi, karma yogi. This means that the karma yogi is always fixed in jnana yoga, because he is completely satisfied with the realization of atma contained within karma yoga. He does not long for nor does he hate anything at all. He tolerates the dualities by being fixed in karma, which is easy to perform without effort, and he is freed from bondage. तो कर्म भौतिक कर्म भले ही करता है, पर भगवान के लिए फल अर्पित करने की वजह से ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी कहलाता है, क्योंकि वह सदैव स्मरण यह भी रखता है आध्यात्मिक ज्ञान को कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, इसलिए मेरा कर्म कर्तव्य यह है कि मैं जितना भी कुछ मेरे से अर्जित हो रहा है वो भगवान की सेवा में, चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो. Sridhar Swami says exactly how is karma yoga or performance of prescribed Vedic activities superior to renunciation is answered here. To answer this question, Krishna praises the followers of karma yoga who also renounces the rewards of their actions. Those who are free from attachment and aversion and who perform yoga or offerings to worship the Supreme Lord are to be known as renunciates. For one who is free from all dualities, has developed equanimity and purity of mind, is easily free from samsara. So it's repetitive, which is already included in the Prabhupada's purport. Madhvacharya says that characteristics of sannyasa are being described here, such as being free from aversion and attraction. यानी द्वेष भी नहीं करना, ना ही फिर अट्रैक्ट होना है. ओके, बैलेंस रहना है. Asceticism or the practice of tapasya or austerity is not what is meant here. What is meant here is the complete cessation of desire for the rewards of action. कर्म फल के लिए इच्छा जरा भी नहीं करना, यही एक्चुअल संन्यास है. सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस टू पॉइंट्स. नहीं तो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर संन्यास ले लिया और बस कौन मुझे ज़्यादा भिक्षा देगा, कौन नहीं देगा, अरे वो अच्छा व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति है, वो भिक्षा नहीं देता ज़्यादा, कौन मुझे ज़्यादा डोनेशन. ये भावना अगर आ गई सन्यासी में तो क्या फ़ायदा, क्या लाभ है फिर. इसलिए उससे अच्छा यह है कि भौतिक कर्म करते हुए फल भगवान को अर्पित करना, और फिर ग्रेजुअली देन वन शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड एंड हिज रियल ड्यूटी इज टू सपोर्ट द मिशन ऑफ लॉर्ड. ओके, इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं वही व्यक्ति नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति और दोनों द्वंद्वों से बाहर है, निद्वंद्व ही महाबाहो, ऐसा व्यक्ति सुख में रहता है, इज ऑलवेज लिविंग हैप्पीली, सभी बंधनों से मुक्त रहता है. तो इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न था कर्मयोग बेटर ज्ञान योग बेटर, कृष्ण से कहते हैं कर्मयोग तुम्हारे लिए बेटर है. पर ये जो कर्मयोग है कोई ये अद्भुत कर्मयोग है, कोई साधारण कर्मयोग नहीं जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्ति आती है और व्यक्ति द्वंद्व से बंधनों से मुक्त होता है. सो आई विल स्टॉप हियर.